Hello everyone. So today we will start with the second unit of statistical mechanics, and the book that we are referring, I have already told you, the book is Statistical Physics by R. Chand. ठीक है? Now the first topic in this unit 2 is postulate of statistical physics. हमने जो भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था एक तरीके से ये उसका इन ब्रीफ है जो हम आगे जाके अब यूज करेंगे. ठीक है, तो हम इस सेकंड यूनिट में बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे. सेकंड यूनिट में वी विल डिस्कस द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन statistics. So for this we should know what is phase space. तो आज हम क्या करेंगे, after discussing postulates we will then focus on phase space. So what are the different postulates of statistical physics? According to statistical physics, जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ. The system that we are considering, that system will be a dynamic system. First, second, it should compose large number of molecules or particles, and these particles will be in a constant random motion. मतलब particles जो है वो static नहीं होंगे, they will be in motion. That means our system is not static, it is a dynamic system. So this is the first postulate, that when we have to study statistical physics, we have to consider those systems in which we have large number of particles, and those particles, they are in a state of constant random motion. Now the second postulate says that the total number of particles or molecules present in a gas or a system, that should be कांस्टेंट. मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारा एक फेज स्पेस है, मैं आगे बताऊंगी फेज स्पेस क्या होता है, उस फेज स्पेस को हमने डिफरेंट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर ऑन हर एक कंपार्टमेंट को हमने डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर दिया. अब ऐसे जो है हम पार्टिकल्स जो है अब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेट्स से हमने फेज स्पेस जो है उनको के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. तो इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉल n, then we can say that n1 is the number of particles in the first compartment, n2 is the number of particles in the second compartment, n3 in the third compartment, and so on, such that their sum should always remain n. ठीक है, n का जो फिगर है ये चेंज नहीं होना चाहिए. हम जब पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, तो वो जो पार्टिकल्स है हमारे वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि उनका जो टोटल है वो चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दिस इज द सेकंड postulate. This also we have already discussed. Now this third postulate also we have discussed कि not only the number of molecules, the total energy of the system should always be constant. ठीक है, ये भी constant होना चाहिए, सिर्फ number of particles ही नहीं, the total energy of the system should also be constant. ठीक है, तो let's say the total energy of the system is denoted by small u, और U1 हमारी एनर्जी है N1 पार्टिकल्स की इन फर्स्ट सेल और कंपार्टमेंट, U2 हमारी एनर्जी है N2 पार्टिकल्स की इन सेकंड सेल, एंड सो ऑन. तो टोटल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, N1 इंटू U1 प्लस N2 इंटू U2 प्लस N3 इंटू U3 प्लस सो ऑन, एंड दिस टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा सिस्टम है उसमें एक फेज स्पेस है जिसमें हमारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज पार्टिकल्स. फेज स्पेस को हमने डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. ठीक है, अब ये जो हमने कंपार्टमेंट्स बनाए हैं या सेल्स बनाए हैं, दीज ऑल शुड बी ऑफ सेम इक्वल साइज. ठीक है, सेम साइज का मतलब क्या है, पार्टिकल के किसी भी कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी. So the fourth point says that all these cells should be of same size. So fifth point says that the probability of events that are equally likely to occur are equal. That means all the accessible microstates corresponding to possible macrostates are equally probable, which is called the postulate of equal prior probability. ठीक है, ये मैंने अभी बताया था.
और ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जो हमारी जितनी भी माइक्रो स्टेट्स होती हैं दे आर इक्वली प्रोबेबल, अगर हमारे जो कंपार्टमेंट्स या सेल्स हैं दे आर ऑफ इक्वल साइज, क्योंकि हर एक कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी जो है सेम होगी। अगर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स या डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी बनती हैं, 2n। अगर हमारे पास दो बॉक्सेस की, सॉरी यानी मैंने क्या बोला, मैं ये कह रही हूँ अगर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल या टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल कितनी होंगी, 2n। And if we say that instead of two compartments we have k compartments and we have to distribute n particles in those k compartments and all the compartments are of equal size, then in that case total number of possible microstates for this system will be k raised to power n। ठीक है, and this is known as the postulate of equal or prior probability। हर एक कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, नाउ द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या कहता है कि जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है दैट विल बी द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और उस मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। ये जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई डायनेमिक सिस्टम है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, then what will happen, then the most probable macro state will be the state of maximum probability, all the particles will stay in the most probable macro state, so we can say that most probable state is the equilibrium state of a सिस्टम। अगर हम सिस्टम को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं उसके बाद पार्टिकल्स जो है फिर से जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में या मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कसिंग दीज पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वी विल नाउ प्रोसीड टू आवर मेन टॉपिक व्हिच इज द फेज स्पेस वॉल्यूम अवेलेबल टू द सिस्टम। देखो क्या होता है, हमारे पास जो एक सिस्टम है उसमें एक फेज स्पेस होता है। फेज स्पेस लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था तुमको। ठीक है, अब इसमें आगे जाके हम क्या करेंगे, इस फेज स्पेस का हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो हम अभी भी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था फेज स्पेस का कि फेज स्पेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। ठीक है, पोजीशन स्पेस क्या होता है हमारा, जिसमें हमारे पास 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z। तो उन x, y, z कोऑर्डिनेट से वी कैन गेट द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल। जैसे हमारे पास पोजीशन स्पेस है ऐसे ही हमारे पास मोमेंटम स्पेस होता है, और वहां पर हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं px, py एंड pz। px is along x, py is along y and pz is along z axis, and then we have to, then from these momentum coordinates we can get the momentum coordinates of each and every particle which are in a state of random motion। ठीक है, तो हमारे पास दो स्पेस होते हैं, पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल होता है which gives the position coordinates of a particle। मोमेंटम स्पेस भी हमारा 3 डायमेंशनल होता है which gives the momentum coordinates of a particle। क्योंकि पार्टिकल मोशन में है तो वो कुछ velocity possess करेंगे। if they are possessing some velocity that means they should possess some momenta, because we know momentum is equal to mass into velocity। p is directly proportional to v। ठीक है, तो पोजीशन स्पेस, तो हमारा फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, what will be the dimension of phase space now? The phase space will be 6 dimensional, 3 dimensions of position space and 3 dimensions of momentum space। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नेक्स्ट, इस फेज स्पेस का हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, देखो पोजीशन स्पेस जो है हमारा उसका वॉल्यूम कितना होगा, मोमेंटम स्पेस जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, देन वील गेट द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ देखो, let us consider n particles of a dynamical system। जो सिस्टम हम ले रहे हैं that is dynamical system and it is consisting of small n number of particles। और ये जो हमारा सिस्टम है it is occupying a volume capital V in ordinary position space of the dynamic
system. तो यहाँ पे ये कह रहा है the values of the position coordinates x, y, z of all the n particles define the volume v in ordinary phase space. ये कहता है कि अगर phase space जो है हमारा उसका वॉल्यूम कैपिटल V है, ठीक है, और जो हमारा मोमेंटम स्पेस है उसका वॉल्यूम कैपिटल गामा है, ठीक है, तो the product of these two volumes, that is the volumes in position space and that in momentum space, is known as the available volume in phase space and it is denoted by tau. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं that tau is equal to, it is the product of volume of phase space which is capital V into the volume of momentum space which is capital gamma. So this is the phase space volume available to the system. ठीक है, अगर हमें पता है phase space जो है this is the combination of position and momentum space. तो अगर हमें position space का volume पता है और momentum space का volume पता है, तो अगर हम उसका प्रोडक्ट करेंगे then we'll get the volume of the entire phase space. ठीक है, तो इस तरीके से we can find the phase space volume available to the system. Next, the size of phase space cell. Now this is important, this you should know when you have to study all the classical and the quantum statistics. Now phase space हमारा होता क्या है, phase space cell क्या होता है and what is the size of phase space cell. अगर हमारा जो सिस्टम है वो क्लासिकल है उस केस में फेज स्पेस सेल का साइज डिफरेंट होगा, अगर सिस्टम हमारा क्वांटम है उस केस में हमारा फेज स्पेस सेल का साइज डिफरेंट होगा. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है दैट वी आर अप्लाइंग द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं या बोज आइंस्टीन और फर्मी डिराक. ठीक है, अगर ये 2.2 टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा. लेट्स से जो हमारा फेज स्पेस है उसमें जो अवेलेबल वॉल्यूम है दैट इज गिवन बाय टाउ. ठीक है, जो फेज स्पेस है उसको वी डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. हमने उस फेज स्पेस जो है उसको डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स. ठीक है, और हर एक जो एलिमेंट्री सेल है हमारा वो इक्वल वॉल्यूम का होगा. ठीक है, so each such cell in phase space represents a particular element of available volume in phase space. Now let us consider an elementary cell. इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो फेज स्पेस है उसका अवेलेबल वॉल्यूम टाउ है, उस फेज स्पेस को हमने डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. ना अब इसमें से वी हैव टू फाइंड द फेज स्पेस सेल साइज. ठीक है, ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनका साइज कितना होगा, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस कंसीडर अ पर्टिकुलर सेल आउट ऑफ दीज लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन फेज स्पेस. तो हमने एक एलिमेंट्री सेल कंसीडर किया, लेट्स से उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं दे विल लाई बिटवीन x and x plus dx, y and y plus dy, z and z plus dz. This means position space में ये जो हमारा सेल है इसकी लेंथ अलोंग द x एक्सिस कितनी होगी dx और इसकी लेंथ अलोंग y एक्सिस कितनी होगी dy and the length along z axis will be dz and this is in position space. Similarly, let's say उसके जो momentum coordinates हैं they are lying between px and px plus dpx, py and py plus dpy, pz and pz plus dpz. मतलब मोमेंटम स्पेस में जो ये हमारा एलिमेंट्री सेल है इसकी लेंथ अलोंग द x एक्सिस होगी dpx, अलोंग द y एक्सिस होगी dpy एंड अलोंग द z एक्सिस होगी dpz. ठीक है, अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, 6 डायमेंशनल सेल होगा हमारा. ठीक है, सपोज ये सेल है या अभी हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको एक स्क्वायर ले लिया. लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट px है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट px plus dpx है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी dpx.
px प्लस dpx माइनस px। इसी तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं पोजीशन स्पेस में अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है इस सेल के दे आर लाइंग बिटवीन x एंड x प्लस dx, y एंड y प्लस dy, z एंड z प्लस dz, तो इसकी लेंथ अलोंग x होगी dx, लेंथ अलोंग y होगी dy, लेंथ अलोंग z होगी dz। ठीक है, ये x और x प्लस dx क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस सेल के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलोंग द x एक्सिस इन पोजीशन स्पेस। कोई सेल है तो उसमें एक लेंथ होगी ना, तो उसमें यहाँ पर भी एक वैल्यू होगी उस लेंथ की, यहाँ पर भी होगी। जैसे हम स्केल में मेजर करते हैं, अगर ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 6 माइनस 2। उसी तरीके से यहाँ पर है x प्लस डी एक्स माइनस एक्स इज डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स इन द मोमेंटम स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर सेल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर सेल है हमारा, इसका वॉल्यूम कितना होगा पोजीशन स्पेस में, वॉल्यूम हमारा कितना होता है, वॉल्यूम के जो डायमेंशंस है वो क्या होते हैं, मीटर क्यूब के होते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, let's say dv जो है हमारा, this is the volume of the elementary cell in position space। तो dx उसकी लेंथ है along x, dy उसकी लेंथ है along y, dz उसकी लेंथ है along z। तो dv हमारा कितना होगा x y z, dx dy dz। यूजुअली हम वॉल्यूम कैसे लेते हैं, v इज इक्वल टू जो x एक्सिस के लॉन्ग है उसको मल्टीप्लाई किया, देन y देन z, हमारी यूनिट क्या आ जाती है मीटर क्यूब, वही हमने यहाँ पर किया है। तो पोजीशन स्पेस में जो हमारा एलिमेंट्री सेल है उसका वॉल्यूम होगा dx इंटू dy इंटू dz। इससे तुम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, ये हम कैसे लिखते हैं। सिमिलरली जो हमारा ये एलिमेंट्री सेल है इसका वॉल्यूम कितना होगा इन मोमेंटम स्पेस, लेट इट बी डिनोटेड बाय d कैपिटल गामा, सो दिस विल बी इक्वल टू dpx इंटू dpy इंटू dpz, जहाँ dpx इसकी लेंथ है along x, dpy इसकी लेंथ है along y एंड dpz इसकी लेंथ है along z एक्सिस। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री लेंथ्स dpx इंटू dpy इंटू dpz। तो अब इस पर्टिकुलर सेल का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम फेज स्पेस का टाउ होता है, तो लेट्स से इस पर्टिकुलर सेल का हमारा टोटल वॉल्यूम है डी टाउ। तो डी टाउ क्या होगा, हमने ऑलरेडी देखा था फेज स्पेस वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट करते हैं पोजीशन और मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम्स का। तो यहाँ पे जो फेज स्पेस में हमारा एक पर्टिकुलर सेल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ इस सेल का वॉल्यूम इन फेज स्पेस इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इस सेल का वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस। तो डी टाउ हमारा हो गया dv इंटू डी गामा, तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, तो हमारा ये वॉल्यूम हमें मिल गया एक पर्टिकुलर सेल का इन फेज स्पेस, डी टाउ इज इक्वल टू dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz। Hence, volume element in phase space may be taken as the product of volume elements in the position and momentum space. ठीक है? Now, at a particular instant, all those particles having position and momentum coordinates within the above limits lie in that cell. तो वो सारे particles जो हैं जिनकी position और momentum coordinates जो हैं इस particular सेल की रेंज के अंदर होंगी, वो इस सेल में लाई करेंगे, बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे सेल में लाई करेंगे। ठीक है, next, the number of particles in various cells in phase space therefore define the instantaneous position and energy distribution of all the particles of the system. Now again from equation 22.3, which is this equation, d tau is equal to dv into d gamma, the volume of element in phase space is given by d tau is equal to dx into dy into dz into dpx into dpy into dpz. Let's say this is equal to h naught cube। ये हमने क्यों किया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पे h नॉट जो है, लेट्स से हमारी कोई भी क्वांटिटी है, हमें नहीं पता क्या है, ये हमारी वो क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन है लेंथ इंटू मोमेंटम का। मतलब ये dx इंटू dpx मिलके एक h नॉट बनाएंगे,
डी वाई इंटू डी पी वाई मिलके एक एच नॉट बनाएंगे, डी जेड इंटू डी पी जेड मिलके एक एच नॉट बनाएंगे, तो टोटल हो गया एच नॉट क्यूब। मतलब ये हमारी एक क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस जो है एच नॉट के, वो डायमेंशंस होंगे लेंथ इंटू मोमेंटम के, क्योंकि डी एक्स डी वाई और डी जेड जो है इनके डायमेंशंस लेंथ के हैं, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड जो है इसके डायमेंशंस मोमेंटम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने, अब हम क्या है लेंथ इंटू मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। लेट्स से हमने सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया, ये देखो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेंथ अपॉन सेकंड क्या होता है हमारा वेलोसिटी, सो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू सेकंड हो गया ये। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी स्क्वायर की क्या होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, तो वेलोसिटी स्क्वायर क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है एनर्जी की, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी की और क्या यूनिट होती है जूल्स। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस लेंथ इनटू मोमेंटम के हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशंस ऑफ जूल सेकंड इन एसआई यूनिट्स। और जूल सेकंड जो है वो किसकी यूनिट होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, सो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E हमारा क्या है एनर्जी, इसके डायमेंशंस कितने हैं जूल्स, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन कितने हैं 1 अपॉन सेकंड। ठीक है, वो डिनोमिनेटर में है, सो इट बिकम्स एनर्जी इनटू सेकंड, एनर्जी जूल्स, जूल्स इनटू सेकंड। सो दैट मींस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस जो है वो जूल सेकंड के होते हैं। और यहाँ पर भी dx इंटू dpx या dy इंटू dpy या dz इंटू dpz अगर हम करते हैं, तो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं इनके डायमेंशंस भी जूल सेकंड के होते हैं। ये चीज हमें यहाँ से पता चली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस आता है क्वांटम में, क्लासिकल में नहीं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो पोजीशन और मोमेंटा है पार्टिकल की, इट कैन बी कंसीडर्ड टू एनी डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड देयरफॉर द पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इन फेज स्पेस। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जो हमारा फेज स्पेस है एक सिस्टम का, उसको हम जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो हमारा सेल है उसका वॉल्यूम हम कितना भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट नहीं है पार्टिकल की उस पर्टिकुलर सेल के वॉल्यूम को लेने में। ठीक है, वो हम कितने से भी छोटा हम चाहें हम ले सकते हैं, इतना छोटा भी ले सकते हैं, दैट इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट। ठीक है, बट दिस कैन नॉट बी द केस व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटम फिजिक्स। क्यों, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से dx और dpy इसका जो डायमेंशन है वो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। एंड वी आल्सो नो फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट डेल्टा x into डेल्टा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। दैट मींस dx और dpx का जो प्रोडक्ट है वो या तो h से बड़ा होगा या h के बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ आगे पढ़ती हूँ तो और क्लियर होगा। इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ h नॉट क्यूब can be made as small as possible. It can even approach zero in classical physics. We shall see later on that the final results in classical statistics are independent of h naught. ठीक है, h naught पे डिपेंड नहीं करता, हमारा जो फेस स्पेस का जो फेस स्पेस सेल का जो वॉल्यूम है वो हम कितना भी कम ले सकते हैं, जितने चाहे हम फेस स्पेस में सेल्स को बढ़ा सकते हैं। So the choice of h naught is of no importance as far as classical statistics is concerned. But when we deal with quantum mechanics, we cannot make h naught as small as we like. हम अपनी मर्जी से h naught को कितना भी छोटा नहीं ले सकते। क्यों?
The value of H naught in quantum mechanics is determined by Heisenberg's uncertainty principle. जो H naught की वैल्यू है quantum mechanics में, that is basically determined by Heisenberg's uncertainty principle, because according to Heisenberg's uncertainty principle, dx into dpx should be greater than equal to h, where h is a constant which is known as Planck's constant, and it is equal to 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. Similarly, dy into dpy जो है, it should also be greater than equal to h. dz into dpz should also be greater than equal to h. तो d tau हमारा कितना हो गया? d tau should be greater than equal to h cube. मतलब जो हमारा वॉल्यूम है एलिमेंट्री सेल का इन फेज स्पेस, वो वॉल्यूम जो है वो h क्यूब के बराबर भी हो सकता है, h क्यूब से ज्यादा भी हो सकता है, बट h क्यूब से छोटा नहीं हो सकता. So in other words, according to this principle, the volume of a cell in phase space cannot be less than h cube. Hence, the minimum possible volume of a cell that can be defined in phase space is equal to h cube. This is the minimum possible volume of a cell in phase space. h cube भी हो सकता है, h cube से ज्यादा भी हो सकता है, but h cube से छोटा नहीं हो सकता. ऑलरेडी अगर हम देखें h क्यूब जो है, इट इज ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि h हमारा कितना होता है, h इज वेरी स्मॉल गिवन बाय दिस क्वांटिटी 10 raised to power minus 34. सो h क्यूब क्या होगा हमारा? 6.6 into 10 raised to power minus 34 का whole cube, which is given by this quantity 10 raised to power minus 100. So this is already a very extremely small quantity. तो हम इतना छोटा वॉल्यूम जो है एक सेल का फेज स्पेस में लेना पॉसिबल है. तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि हम फेज स्पेस को कितने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा हमारे पास एक फेज स्पेस है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस. फेज स्पेस जो है उसका वॉल्यूम वी यूजुअली डिनोट बाय टाउ, एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस कैपिटल V इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द इनटू द वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस. ठीक है, which is denoted by capital gamma. So tau is equal to capital V into capital gamma. उसके बाद हमने देखा जो हमारा फेज स्पेस है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स. ठीक है, जो हमारा फेज स्पेस है उसको हमने डिवाइड किया इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स. नाउ वी हैव टू फाइंड, हम जो उसको डिवाइड कर रहे हैं इतने सारे सेल्स में फेज स्पेस को, तो हम ये जो सेल ले रहे हैं इसका वॉल्यूम हम कितना ले सकते हैं. ठीक है, सो फॉर दिस हम एक पर्टिकुलर सेल कंसीडर करेंगे. लेट्स से पोजीशन स्पेस में उसकी लेंथ है dx dy dz, मोमेंटम स्पेस में उसकी लेंथ है dpx dpy dpz. तो पोजीशन स्पेस में हमारा वॉल्यूम कितना होगा? लेट्स से dv इक्वल टू dx dy into dz, एंड द मोमेंट इन मोमेंटम स्पेस द वॉल्यूम विल बी, let's say d capital gamma, so this is equal to dpx into dpy into dpz. So the volume of the cell in phase space will be equal to, let's say, d tau, that is equal to dv into d gamma. So that is dx dy dz into dpx dpy dpz. तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं जिनका हम अगर dx into dpx को एक साथ करें, then dy into dpy and then dz into dpz. इन तीनों के जो डायमेंशंस है हमारे, ये पोजीशन into मोमेंटम के डायमेंशंस है, which is same as the as joule second. तो इसका मतलब ये जो हमारे तीन चीजें हैं dx into dpx, dy into dpy and dz into dpz, इन सब का अगर हम ये जो हमारी तीन क्वांटिटी आई हैं इन सब के डायमेंशन जूल सेकंड के हैं. क्लासिकल फिजिक्स में तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लासिकल फिजिक्स में h नॉट इंडिपेंडेंट है हमारा सेल का वॉल्यूम, और हम कह सकते हैं कि जो हम सेल ले रहे हैं उसका वॉल्यूम हम कितना भी छोटा ले सकते हैं. इट कैन इवन अप्रोच जीरो सच दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इवन बाय अ पॉइंट. वो भी पॉसिबल है. ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वॉल्यूम ऑफ सेल पे, हम कितना भी वॉल्यूम ले सकते हैं. बट
क्वांटम फिजिक्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज क्वांटम फिजिक्स में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, जो कहता है dx into dpx should be greater than equal to h, where h is the Planck's constant। मतलब ये जो हमारी तीन क्वांटिटीज आई dx into dpx, dy into dpy, dz into dpz, इनका जो हमारी क्वांटिटी आई, इनके जो डायमेंशंस हैं वो जूल सेकंड के हैं, विच इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और क्वांटम फिजिक्स में जब हम डील कर रहे हैं, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट। और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी से हमें ये पता चला कि जो तीनों क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यू जो है प्लैंक्स कांस्टेंट से ज्यादा हो सकती है, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल हो सकती है, बट प्लैंक्स कांस्टेंट से कम नहीं हो सकती। So from this we conclude that d tau, the volume of cell in phase space in classical physics, should be greater than equal, in quantum physics should be greater than equal to h cube। ठीक है? Classical physics में we can take any volume of cell in phase space, but in quantum physics the volume of cell in phase space should be greater than equal to h cube। That means the minimum possible volume of a cell in phase space can be equal to h cube, it cannot be less than h cube। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो अब हमने क्या यहाँ पे क्या देखा, फेज स्पेस सेल साइज। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि जो पूरा फेज स्पेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्स कितने हो सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस। हाउ वी फाइंड दिस? We know if we know the total volume of the phase space and we know the volume of one cell, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, then what we'll get the total number of cells in phase space। So by definition total number of cells in phase space होगा क्या, the total volume in phase space divided by the volume of one cell। टोटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस क्या होगा, एक एलिमेंट्री सेल का वॉल्यूम कितना है, dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz। तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर रेंज, ठीक है, तीन इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास ना एक्चुअली तीन नहीं 6 आएंगे, 6 डायमेंशनल होता है फेज स्पेस, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे 6 इंटीग्रेशन बनाओगे। ठीक है, 3 इंटीग्रेशन होंगे dx, dy और dz के, 3 इंटीग्रेशन होंगे dpx, dpy और dpz के। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन सेल हमने कितना लिया है, d टाउ। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में हम पोजीशन स्पेस को अलग कर रहे हैं, मोमेंटम स्पेस को अलग। तो ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dz डिवाइडेड बाय d टाउ। दिस इज द वॉल्यूम of position space, this is the volume of momentum space, and this is the volume of one cell। So let's say what is the volume of position space, capital V, and what is the volume of momentum space, capital gamma। So total number of cells in phase space कितना हो गया, capital V into capital gamma divided by d tau, where d tau जो है हमारा this is equal to h naught cube for a classical system, where the value of h naught cube can even approach 0, but in quantum statistics this h naught is replaced by h, where h is the Planck's constant, and in that case we can say that the volume of a cell in phase space can be greater than equal to h cube। So the minimum possible volume of cell in phase space is h cube। So where d tau is h naught cube for classical system, and the value of h naught cube can even approach 0 in such systems. In quantum mechanical systems, d tau is equal to h cube, where h is the Planck's constant। तो ये हमने आज देखा। In the next class, we'll start with division of phase space into compartments and cells। ठीक है, ये हम phase space को इतना डिटेल में अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें धीरे धीरे अप्रोच करना है टू द क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए वी शुड नो व्हाट इज फेज स्पेस। तो आज हमने क्या देखा है, ब्रीफली समराइजिंग द थिंग्स। अगर कोई भी डाउट है किसी को, सबसे पहले हमने कुछ पोस्टुलेट्स देखे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के, which says that जो सिस्टम हम ले रहे हैं, it will consist of large number of particles, and this system is a dynamical system such that all the particles they are in a state of random
motion. Next, total number of particles in the system will remain constant. Total energy of the system will remain constant. जो हमारा phase space है, it can be divided into large number of cells and each cell should be of same size. That means all the accessible microstates corresponding to the possible macrostates are equally probable, which is the postulate of equal a prior probability. After this, we have seen that the most probable macrostate is the state of maximum probability, which is also known as the equilibrium state of a dynamic system. उसके बाद हमने देखा what is phase space volume. This is the product of volume of position space and the volume of momentum space. Let's say volume of position space is capital V, volume of momentum space is capital gamma, and the volume of phase space is tau. So tau is equal to V into gamma. ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है, जो हम फेज स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, हम जो वो सेल है उसका कितना वॉल्यूम ले सकते हैं, मिनिमम वॉल्यूम उसका कितना पॉसिबल है. तो ये करने के लिए हमें उसमें एक पूरे फेज स्पेस में एक छोटा सा सेल लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स इन पोजीशन स्पेस है dx dy dz. मोमेंटम स्पेस में इसकी लेंथ है dpx dpy dz, dpz along x, y and z axis respectively. So that means the volume of this cell in position space क्या होगा, dv equal to dx dy dz, and in momentum space it will be d gamma equal to dpx dpy into dpz. So what will be the volume of this elementary cell in phase space? d tau is equal to dv into d gamma. तो वो हमारा आया dx into dy into dz into dpx into dpy into dpz. मतलब हमारे पास तीन चीजें आई, एक आया dx into dpx, एक क्वांटिटी आई dy into dpy, एक क्वांटिटी आई dz into dpz. और ये जो तीनों हमारी जो क्वांटिटीज आई हैं, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस है हमारे लेंथ इनटू मोमेंटम के, दैट मींस जूल इनटू सेकंड के. अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा जो सेल है उसके वॉल्यूम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट कैन टेक एनी वॉल्यूम, इट कैन इवन अप्रोच जीरो. जो वॉल्यूम है हमारा d tau, it can be made as small as possible, it can even approach zero. But when we consider quantum mechanics, in that case we cannot take the volume of this elementary cell as small as possible. There is some restriction on this volume of cell in phase space. Why this restriction arises? This restriction is arising because the product of dx and dpx gives joule into second, which is having the same dimensions of Planck constant. And we know from Heisenberg's uncertainty principle that dx into dpx should be greater than equal to h, dy into dpy should be greater than equal to h, dz into dpz should be greater than equal to h. इसका मतलब d tau जो है it should be greater than equal to h cube. मतलब जो हमारा फेज स्पेस सेल है उसका वॉल्यूम हम h क्यूब से ज्यादा भी ले सकते हैं, h क्यूब के इक्वल भी ले सकते हैं, बट h क्यूब से कम नहीं ले सकते. ये हमने देखा. फिर उसके बाद हमने देखा फेज स्पेस में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सेल्स वी कैन हैव. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? It will be the ratio of total volume in phase space divided by the volume of one cell. So total volume in phase space क्या होगा? The product of volume in position and the product of the total volume in phase space क्या होगा? The product of volume in position space and the volume in momentum space divided by d tau, where d tau is equal to h naught cube for classical system, where h naught can take any value, and d tau is equal to h cube in quantum systems, where h is the Planck constant and d tau is greater than equal to h cube. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, it is greater than equal to h cube. The minimum possible volume of a cell in phase space is h cube. ठीक है. Now in the next class we'll proceed with the division of phase space into compartments and cells.